Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina astafa amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم This talk today, and I feel like पता नहीं मैं कितने ज़माने बाद शायद talk दे रहा हूँ. It feels really awkward. This talk and जो आज मैंने कुछ आयतें आपके सामने तिलावत फरमाई हैं, I'll be speaking about you. इन्हीं के बारे में मैं आपसे आज कुछ बात करूँगा. And the verse that I recited is actually verse number 35 from Surah Noor, which is Surah number 24. And the interesting part about this ayat specifically is कि अगर आप इसको हिस्टोरिकली मैप करें तो देयर इज़ नो सूरा इन द कुरान जिसकी इतनी तफसीर की गई हो. इनफैक्ट अगर आप इसको, नॉट दैट मैंने इतना मुताला किया, बट जो मैं रेफरेंसेस देख रहा था, देयर आर ओवर 100 इंटरप्रिटेशंस ऑफ दिस वन आयत. लाइक बहुत सारी इसकी तफसीर की गई है, एंड विच मेक्स दिस आयत वन रियली स्पेशल. बट obviously today मैं आपके सामने सिर्फ एक या दो उसकी interpretations रखूंगा which I feel are relevant to the talk today. And this talk is actually, and why I was thinking about this verse and this ayat, I personally really like it, but इसके पीछे एक मकसद है, and जो इससे एक मैं मानी अखज़ करता हूँ या बहुत सारे मुफस्सरीन ने इससे जो एक मानी अखज़ किया है, is that हम अपनी ज़िंदगियों में एक चीज़ देखते हैं बहुत commonly कि sometimes you are in a state in your life, you're at a stage in your life where you feel एक अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दूरी महसूस हो रही होती है, अजीब सी एक, कि ना नमाज पढ़ने का दिल करता है, ना कुरान मजीद उठाने का दिल करता है. अच्छा, अगर आप नमाज के लिए खड़े भी हो जाएं तो जिसे कहते हैं ना कि आपको पता होता है कि ये बस मैं सिर्फ एक आम अल्फाज में कहते हैं ना खाना पूरी करना, कि बस you're just standing there because अच्छा you know it's farz and I have to do it, but you feel no connection at all. And you know कुरान मजीद सुनने का भी दिल नहीं करता है, बज़ाहिरन जो है आपका दिल गुनाहों की तरफ माइल हो रहा होता है. एंड यू फील के मतलब बहुत सारे ऐसे भी ख्यालात आ रहे होते हैं कि सालों से एक आपने चीज़ के बारे में नहीं सोचा होता, हो सकता है कोई ऐसा गुनाह था, कोई ऐसी हैबिट थी आपने छोड़ दी थी, एंड यू फील लाइक गेटिंग बैक इनटू इट. इसी के फ्लिप में बहुत सारे ऐसे मैं केसेस को पर्सनली जानता हूँ, हो सकता है आज ऐसे लोग भी मौजूद हों जो इससे रेजोनेट कर सकें. आई पर्सनली रेजोनेट विद दैट कि एक ऐसा टाइम था जब इसी हम स्टेज में थे, अल्लाह से बहुत दूरी थी, अजीब सी दूरी थी, एंड फिर बस सडनली अल्लाह ताला ने रुख मोड़ दिया, एंड समझ ही नहीं आई कैसे कि बस सडनली एवरीथिंग मेड सेंस. कुरान मेड सेंस, नमाज मेड सेंस, रोज़ा मेड सेंस, गुनाहों को छोड़ना मेड सेंस. एंड दिस this fluctuating between what Allah Ta'ala describes in the Quran as dhulumat, darkness, and noor, light, is I think a phase that we all experience in many different stages throughout our lives. So these ayat mein se jo aaj hum like at least one sort of meaning that I want to take is this fluctuation. I want to talk about this fluctuation, why it happens, and how we make that journey towards the noor. अच्छा, the word noor, by the way, can somebody tell me what it means? What does the word noor mean? अच्छा, ये थोड़ा सा I'm going to keep asking you guys question, वरना मुझे भी नींद आ जाएगी, आप लोग को तो आना शुरू हो, थोड़ा थोड़ा को तो हो भी रही है.
तो what does noor mean? Light, right? अच्छा, this ayat starts with this phrase, Allahu nurus samawati wal ard. That Allah Ta'ala is the light of the heavens and the earth, which has many different meanings. But मुफस्सिरीन majority of the scholars say कि इससे जो है actually अल्लाह ताला एक parable paint कर रहे हैं. He's trying to paint he's trying to show you or explain this to you through a metaphor. अच्छा, ये मैं थोड़ा सा अब इंग्लिश लेसन है. हम लोग इंग्लिश में एक चीज़ होती है सिमिली. किसी को याद है सिमिली? तो हम कहते हैं कि ज़ईद is as brave as a lion, या ज़ैद is brave like a lion. तो ये जो है ज़ैद is brave like a lion, इसको हम कहते हैं सिमिली. अच्छा, इसमें सिमिली के लिए कौन सा लफ्ज आ रहा है? What is showing me that there is a simile, there is a specific word there which is telling me like. क्या पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, राइट? तो ज़ैद इज अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता हूँ. मैं कहता हूँ ज़ैद इज लाइक अ लायन. मैंने कौन सा वर्ड खा लिया? नहीं, ज़ैद इज ब्रेव लाइक अ लायन, और अब मैं कह रहा हूँ ज़ैद इज लाइक अ लायन. व्हाट डिड आई रिमूव? ब्रेव. सो आई रिमूव द क्वालिटी, बट बाय सेइंग ज़ैद इज लाइक अ लायन इट मींस कि ज़ैद, मतलब हो सकता है उससे ब्रेवरी मुराद हो, करेज मुराद हो, गुस्सा मुराद हो, अथॉरिटी मुराद हो. और फिर मैं उसको भी हटा दूं, मैं कहता हूं ज़ैद इज अ लायन, राइट? दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन एक चीज जिसको हम सिमिली कहते हैं टू अ मेटाफर. एंड यहां अल्लाह ताला एक मेटाफर की बात करें. अल्लाह ताला इज नॉट सेइंग अल्लाह ताला इज लाइक द लाइट ऑफ द हेवंस ऑफ द अर्थ. अल्लाह ताला इज डायरेक्टली सेइंग व्हाट? दैट अल्लाह ताला is the heaven of the light. And what that does is that shows you the closeness of the quality of light and Allah subhanahu wa ta'ala, noor and Allah subhanahu wa ta'ala. But what does that mean? That Allah ta'ala is the light of the heaven of the earth. तो इसको यूं समझते हैं कि and Allah ta'ala does this a lot in the Quran, जहाँ अल्लाह ताला एक physical reality बयान कर रहे होते हैं but उसमें असल में कोई spirituality मुराद होती है. अच्छा, मुझे देखने के लिए क्या चीज चाहिए? To see. What do I need? Eyes, exactly. And just eyes? You need light. So फिजिकल दुनिया में अगर मुझे कोई चीज देखनी हो तो मुझे दो तरह का नूर चाहिए. बिकॉज अल्लाह एक और लफ्ज अरबी जबान में आंखों के लिए नूरुल आइन भी आता है, आंखों की लाइट, राइट? तो देयर इज तशबीह देयर एज वेल कि मुझे एक अपनी आंखों में नूर चाहिए कि अगर मैं अंधा होता, मेरे पास बीनाई नहीं होती, तो आई कुड हैव 50,000 लाइट्स हियर, इट वुडंट मैटर. And secondly, if I have eyes and I have noor in my eyes, I need the noor of either the sunlight, right, or physical lights that we create, right? So ये चीज याद रखें कि देखने के लिए दो तरह के नूर चाहिए. When we remember that, inshallah, I'm going to come back to it. देखने के लिए दो तरह के नूर चाहिए, एक मेरी जो आंखों में मौजूद है और एक जो मुझे एक्सटर्नली मिल रहा है. वन. सेकेंडली, अगर मैं लाइट के बारे में बात करूं, स्पेसिफिकली सनलाइट के बारे में बात करूं, इट्स नॉट जस्ट कि हम उस सनलाइट की वजह से देख सकते हैं. अगर ये सनलाइट ना होती तो आपके पास वेजिटेशन नहीं होता. जिसने भी बेसिक ग्रेड 5-6 लेवल का साइंस पढ़ा है, तो इफ वी डोंट हैव सनलाइट वी कांट इवन हैव वेजिटेशन एंड प्लांट्स. इफ वी कांट हैव वेजिटेशन एंड प्लांट्स, टेक्निकली व्हाट वुड सीज टू एग्जिस्ट? लाइफ, राइट? तो एक लिंक है कि इफ यू हैव दैट लाइट यू विल हैव लाइफ. दैट्स वन. द सेकंड, and this is something really interesting, मैं recently इस पे एक बड़ी interesting study पढ़ रहा था कि there is a link between happiness and sunlight. इस पे बड़ी studies की गई हैं कि जिन ममालिक में ज़्यादा sunlight होती है वहाँ depression कम होता है, and जहाँ you know there are gloomy skies, more rain, less sunlight, तो वहाँ लोगों के mood जो हैं वो it actually is a depressive state. So in a sense when we say Allahu nurus samawati wal ard, one tashbih that why is Allah Ta'ala calling himself the light of the heavens and the earth is because the light of the heavens of the earth is actually responsible for life. उसकी physical reality है. तो एक पीछे तशबीह है कि that is what Allah Ta'ala is. That Allah Ta'ala is actually responsible for life on earth. And then Allah Ta'ala continues the ayat and says, مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ. That Allah Ta'ala कह रहे हैं कि the light, Allah Ta'ala is the noor, एंड उसकी मिसाल ऐसे है, मसलु नूरी ही, उस अल्लाह की लाइट की, नूर की मिसाल ऐसे है. एंड दिस इज आर्ग्यूबली वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एक तरह से, बट देन ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल पैराबल्स अल्लाह ताला पेंट्स इन द कुरान. अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह ताला की लाइट की मिसाल
is like that of a mishkat. It's like a mishkat. And mishkat का translation है, आसान translation है indent, और वरना हम कहते हैं niche. और सुभान अल्लाह, this made my life really easy. इसको niche कहते हैं. I don't know अगर ये कैमरे पे नजर आ रहा है, doesn't matter. But can you see that indent in the wall? That's a niche. तो अल्लाह ताला, and so just I'll try and translate these ayat and then I'll come back to what the parable means. So I'm just going to translate it. मथलु नूरिही का मिशकात, अल्लाह ताला की लाइट की मिसाल ऐसे है जैसे कि एक मिशकात, एक नीश, फीहा मिसबाह, उसके अंदर क्या है? एक मिसबाह है. एंड मिसबाह किसको कहते हैं? मिसबाह किसको कहते हैं, कौन बताएगा? या अ लाइट, अ चिराग. अच्छा, एंड मिसबाह लिटरली कम्स फ्रॉम द रूट ऑफ sabah, सुबह. And in fact the word misbah is interestingly, इसको हम कहते हैं अरबी जबान में, थोड़ी सी अरबी की बात कर लेंगे यार, कुछ स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं. किसको कहते हैं? मिसबाह इज इसम, कोई बता देना तो क्या ही बात होगी. दिस इज नॉट गुड फॉर आवर मार्केटिंग. आला कहते हैं टूल को. ये जो कंस्ट्रक्शन है ना वर्ड मिसबाह, इट लिटरली व्हाट दिस मीन्स इज दैट द वर्ड मिसबाह इज a tool that is trying to simulate the morning. कि असल में सुबह आती है सनलाइट से, तो these lights, these lamps, these chirags are actually just what? They're trying to simulate the morning when there is darkness, right? So now we know that kamishkatin fiha misbah. तो we have a niche के अंदर एक क्या है? एक लैंप है, एक चिराग है. अल मिसबाहु फी जुजाजा, और ये जो लैंप है that is in a zujaja, and zujaja literally कहते हैं एक ग्लास को. So now you have a niche, then you have a lamp, and then you have a glass. Az-zujajatu ka'annaha kawkab, और ये जो ग्लास है, even though by the way like ये जो चिराग itself है, it like उसके अंदर लैंप होती है ना, तो let's say because we're talking about something niches, अब तो उस उनका ये पर्पस नहीं होता, ये तो अब सिर्फ डिजाइन के लिए है. पहले क्या होता था कि ये आप दीवार के अंदर नीश बनाते थे, और ये तो खैर बिल्कुल स्ट्रेट है. नीशेस थोड़ी सी कॉनकेव होती हैं, लाइक देयर स्लाइटली दे हैव अ डेंट एट द बैक एज वेल. सो जब वो लैंप जलती थी तो द लाइट वुड स्प्रेड इन द रूम. सो यू हैव दिस नीश, यू हैव द लैंप, दैट लैंप इटसेल्फ इवन दो इट माइट बी लिट, उसके ऊपर एक ग्लास है, और ये जो ग्लास है उसका कअन्नहा कौकब, कौकब किसको कहते हैं? स्टार्स. सो दैट ग्लास इटसेल्फ इज लाइक अ स्टार. नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग कि एक तो अंदर लैंप थी, लैंप की अपनी एक ब्राइटनेस होती है, बट द ग्लास इटसेल्फ इज लाइक अ स्टार, मतलब उसकी खुद अपनी एक रोशनी है, उसकी एक चमकाहट है. एंड नॉट जस्ट अ स्टार, इट इज कौकबुन दुर्री. एंड दुर्री लिटरली मींस स्पॉटलेस, ब्रिलियंट, यू नो, dazzling. तो niche, lamp in a glass, and that glass itself is like amazingly brilliant and sparkling like a star, right? Yuqadu min shajara mubarakatin zaytuna. And interestingly that this lamp, अच्छा लैम्प जलती कैसे है? नॉट द, चलो लैम्प नहीं, कैंडल कैसे जलती है? ये जो चिराग होता है आग से, एंड उस आग के अंदर या तो वो वैक्स होता है या वैक्स के अंदर वो थोड़ा सा ऑयल होता है. तो अब आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो चिराग है, ये जो मिसबाह है, it is actually lit from what? Min shajara, from a tree, मुबारका, which is बहुत ज्यादा बरकत वाला, बहुत blessed, जैतूना, olive, और olive tree है ये. अच्छा, now I just want you to follow. ये जो नीश होती है घर के अंदर होती है, घर के बाहर होती है? अंदर होती है. और इस नीश के अंदर जो लैंप होती है वो हम कब जलाते हैं, दिन में के या रात में? रात में. ठीक है, गुड, यू गाइस आर फॉलोइंग. अच्छा, मगर और फिर जो ये कौकब है, कौकब ये सितारे को कहते हैं, ये कहाँ होता है? आसमान में. और अब अल्लाह ताला दरख्त की बात कर रहे हैं, ये घर के अंदर होता है, घर के बाहर होता है? बाहर होता है. आई जस्ट वॉन्ट यू टू फॉलो दिस. वी स्टार्ट ऑफ, हम घर के अंदर हैं अभी, सो इट्स सब टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज इंटरनल. Suddenly, Allah Ta'ala shifts your mind and He talks about two things that are external. एक सितारों की बात हो रही है और फिर एक दरख्त की बात हो रही है. So I want you to keep that in mind. अच्छा, ये दरख्त ना के, so what this is implying is कि ये जो लैंप है, इसकी जो फ्लेम है, it is being powered by something that cannot be found in the house. उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? बाहर जाना पड़ेगा. और ये जो दरख्त है, ये एक blessed olive tree है. अच्छा, olive tree क्यों है? तो ऑलिव, बाय द वे इट्स इंटरेस्टिंग, जैतून कहते हैं ऑलिव को.
एंड अरबी में जो ऑयल है ना, ऑयल सिर्फ ऑयल, उसके लिए भी लफ्ज ज़ईत आता है। अच्छा, इससे हमें क्या मिलता है कि अरबी में जो अरब हैं वो अगर किसी चीज को तेल समझते हैं ना तो वो जैतून के तेल को समझते हैं, बाकी वो तेल ही नहीं समझते। इसीलिए जैतून, द ऑलिव ऑयल, the literally the only the word for oil in Arabic is also zayt, which, and by the way, like if you look at Arab history, अभी भी अगर कोई, हम अल्हम्दुलिल्लाह जिसको अल्लाह ताला उम्रे पे जाने की तौफीक देते हैं और वहां आप जाके अरब खाना देखते हो तो हर चीज में ऑलिव ऑयल होता है, या साथ में ऑलिव ऑयल, वो फ्रेंच फ्राइज के साथ भी कभी कभी आपको ना वो ऑलिव ऑयल सर्व कर देते हैं। दे लिटरली लिव ऑन दैट। एंड ऑलिव ऑयल की अपनी कुछ बरक़ात हैं, चाहे वो खाने के लिए हो, आप सर में लगाएं, मुंह पे लगाएं, मले, मतलब उसकी कोई बेशुमार, बल्कि मैं किताब देख रहा था इसमें देवर वो 100 बेनिफिट्स इंटरनल एक्सटर्नल ऑफ ऑलिव ऑयल। तो अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं कि ये जो दिस लैम्प दैट इज लिट, इट इज लिट बाय समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल, एंड आई थिंक द अरब्स वुड अप्रिशिएट इट मोर। आई थिंक हमारे लिए शायद कोई और वर्ड आना चाहिए था, या मिन बिटकॉइन या मिन बैंक अकाउंट, या जिससे जिस चीज से हमें कोई एक फीलिंग आए कि वाकई जिसकी बात हो रही है उसकी बहुत वैल्यू है। तो व्हेन अल्लाह ताला सेज मुबारकतिन ज़ैतूना, for the Arabs at that time, it's like, oh, like whatever is lighting this lamp has to be of supreme benefit. Like it is something like that is a luxury. And the word Mubarak, by the way, it comes from the word baraka, बरकत को कहते हैं। अच्छा, बरकत क्या है? हम कहते हैं बरकत हो गई। बरकत का अरबी में जो एक तर्जुमा है, we use that in same in Urdu, is when something that takes place is beyond our imagination. मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, हमारी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड। हमने थोड़ा सा, हमारे घर पे 4 दोस्त आ रहे थे, हमने थोड़ा सा खाना ऑर्डर किया, सडनली जिस तरह होता है 12 आ गए, और जब वो 12 आ गए तो टेंशन हो गई और फिर खाना पूरा हो गया, तो हम कहते हैं वो खाने में बरकत हो गई, राइट? सो इट्स समथिंग दैट इज बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। तो अब, एंड आई वांट यू टू रिमेंबर दिस, व्हाटएवर इज लाइटिंग दिस लैम्प इज extremely beneficial, and B, it is beyond your imagination and expectation. Like आप imagine ही नहीं कर सकते वो क्या है. So that's one thing. And then one more thing about this oil. अल्लाह ताला कहते हैं ला शर्क़िय्यतु वला ग़रबिय्या, कि neither is it from the east and neither is it from the west. अब ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो दरख्त है या ये जो ऑयल जिस दरख्त से लिया जा रहा है, ये ना ईस्टर्न है ना वेस्टर्न है. इसके दो मीनिंग्स हैं. एक इसका मीनिंग ये है कि ये जो दरख्त है, एंड दिस इज समथिंग दैट्स इंटरेस्टिंग, कि ये जो ऑलिव ट्रीज होते हैं दे रिक्वायर अ डिसेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट. इसीलिए बाय द वे द मोस्ट अमाउंट ऑफ ऑलिव ट्रीज दैट आर फाउंड आर एक्चुअली इन द अरब रीजन. स्पेसिफिकली जेरूसलम इज वन ऑफ द रीजन्स व्हिच इज नोन फॉर हैविंग लाइक ग्रेट ऑलिव ट्रीज. अच्छा, ये जब कहते हैं ना ना ये ईस्टर्न है ना ये वेस्टर्न है, इसका मतलब ये है कि ये दरख्त जो है वो बिल्कुल अकेले खड़ा हुआ है. एंड बिकॉज वो बिल्कुल अकेले है, तो जब सन राइज करता है तो उसको ईस्ट से सारी धूप मिल रही होती है, और जब सन सेट कर रहा होता है तो उसको वेस्ट से सारी धूप मिल रही होती है. इनफैक्ट लाइक इट कंप्लीटली एनवेलप्स द ट्री. दैट्स वन मीनिंग. द सेकंड मीनिंग, एंड दैट्स आई एम प्रीएम्प्टिंग व्हाट विल कम, कि इस पूरे का मकसद क्या है. Some have said what that means is कि ना ये ईस्ट का है ना ये वेस्ट का है, इसका मतलब है ये इस दुनिया से नहीं है. It means that this oil tree that Allah Ta'ala is referring to, it cannot be found in dunya. So let's see what that means, right? يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ. And ये जो oil है, ये खुद यकादु ज़ैतुहा युदी, it wants to glow. Like इसके अंदर अल्लाह ताला ने एक सिफत रखी हुई है कि वो किसी तरीके से ग्लो करना चाहता है. मतलब उसके अंदर एक तलब है कि बस मैं ग्लो करूं. वलौ लम तमससु नार, इवन दो अभी तक आग ने उसको टच नहीं किया है. वंस अगेन, इसकी मैं आपको मिसाल यूं देता हूं कि कुछ चीजें ना बहुत ये होती हैं, फ्लेमेबल होती हैं, फ्लैमेबल होती हैं. वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक हाईली फ्लैमेबल थिंग्स इन द वर्ल्ड इज एक्चुअली लाइक गैसोलीन. इनफैक्ट अगर आपको पता करना हो कि पेट्रोल में कितनी मिलावट है, तो उसके करीब आग कर दो. जितना प्योर होता है ना गैसोलीन, तो आप जब आग को करीब ले जाते हैं ना तो वो लिटरली उसकी तरफ खींचता है, इट लिटरली पुल्स टुवर्ड्स द फायर, एंड जितनी मिलावट होगी वो उतना पीछे रह जाएगा. वलौ लम तमससु नार. आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर एंड आई एम गोइंग टू नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट अल्लाह ताला इज ट्राइंग टू से. ये अल्लाह ताला इज एक्चुअली थ्रू दिस डिस्क्रिप्शन, एंड आई विल रिकॉल नीश में लैम्प के बाहर ग्लास इटसेल्फ इज वेरी लाइक अ स्टार स्पार्कलिंग. The lamp is lit by this blessed olive tree oil. That oil is, is like still, it's like glowing, reaching towards the fire. It wants to brighten up. ये सारी क्या बात हो रही है? And I'm going to, by the way, give you
today just one interpretation. As I said, iski over 100 interpretations are there, but I'm going to give you the interpretation of Ibn Abbas radhiyallahu anhu. He says कि यहाँ अल्लाह ताला ये जो मिसाल दे रहे हैं is actually that of the human body. He says that the niche is like your rib cage. आपका ये जो सीना है ना, chest है, rib cage है, वो भी एक niche की तरह होता है. उसके अंदर एक मिसबाह है, उसके अंदर एक लाइट है, and that is the light, that is the नूर of ईमान that Allah Ta'ala has put inside of you. And ये जो ईमान का नूर है, इसके अराउंड क्या है? एक जुजाजा है, एक ग्लास है. What is that glass? That is your heart. And that heart itself is glowing, right? And then he says कि ये जो oil है, right? This oil that we keep, ये जो एक बहुत ही मुबारक दरख्त का जो ये oil है, जो ना ईस्ट से पाया जाता है और ना ही वेस्ट से पाया जाता है, that is actually the Quran Majid that is being spoken about. And so what does that mean? What that means is that and it's like a really powerful thing in a sense कि अगर मैं उसको बिल्कुल पीछे ले जाऊं, each one of us before we were born were in a state where Allah subhanahu wa ta'ala met us and spoke to us, जिसको हम आलम अरवाह कहते हैं. क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी तमाम क्रिएशन को बनाया. एंड उस वक्त हमारा फॉर्म क्या था? वी डिडंट हैव आवर फिजिकल बॉडीज, वी वर जस्ट द रूह. एंड दैट वाज द मोस्ट प्योर स्टेट वी वर इन, जिसके अंदर पूरी आज तक जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, अल्लाह ताला स्पोक टू देम एंड वी सॉ अल्लाह, मतलब हमारी एक इंटरेक्शन हुई थी अपने रब से. एंड उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने इस रूह को क्या किया? एक इंसानी जिस्म के अंदर डाल दिया. So the rib cage is there, and now Allah subhanahu wa ta'ala is putting the light of Iman inside of all of us. And He is covering that with a glass, and that is your heart. अच्छा, ये heart और glass की भी क्या अजीब मिसाल है कि glass जो है in of itself साफ होता है, चमकीला होता है. अल्लाह ताला भी कह रहे हैं it's like a star that is extremely bright. मगर गंदा भी हो जाता है ग्लास, उस पर स्मजेस भी लग जाते हैं, काला भी पड़ जाता है. अच्छा, जितना ग्लास काला होगा उतनी लाइट कम बाहर निकलेगी, और जितना ग्लास साफ होगा तो लाइट कैन पास इन एंड आउट. इनफैक्ट बाय द वे, हमें एक दो जगह कुरान हदीस शरीफ में मिलता है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, देयर इज अ हदीस दैट द प्रॉफेट सेड, ही सेड कि योर हार्ट इज वाइट, राइट, बट जब आप गुनाह करते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है? एक ब्लैक स्पॉट आ जाता है. एंड अगर आप इस्तिगफार करते हैं तो क्या होता है? वो ब्लैक स्पॉट रिमूव हो जाता है. बट इफ यू डू नॉट डू इस्तिगफार एंड यू कीप सिनिंग, तो द ब्लैकनेस इंक्रीजिंग अंटिल कि आपका दिल बिल्कुल काला हो जाता है. एंड नाउ गोइंग बैक टू दिस सेम पैरेबल, दैट मीन्स लाइट कैन नॉट गो इन एंड नॉट गो आउट. एंड वंस दैट ग्लास इज कंप्लीटली डर्टी, तो हो क्या रहा है कि ना मैं किसी को फायदा पहुंचा रहा हूं, ना मुझसे किसी को फायदा हो रहा है. अल्लाह ताला ने मेरे अंदर एक नूर डाला था. अच्छा, एंड नूर जो है फैलने के लिए होता है. बट इफ आई कीप डर्टीइंग दैट ग्लास, आई कैन नॉट लेट एनी लाइट आउट, एंड अनफॉर्चुनेटली इवन वर्स फॉर मी, आई कैन नॉट लेट एनी लाइट इन. बट इफ दिस ग्लास वॉज प्योर, इफ दिस ग्लास वॉज कंप्लीटली क्लीन, so then what happens? And this is, you know, now connect that back to, I don't know how many people have had that feeling before, कि being in a state जहाँ आप अल्लाह से बहुत दूर हैं, एंड गफलत है, एंड गुनाह हैं, एंड सोबत भी ठीक नहीं है, एंड पता नहीं क्यों आपके अंदर एक लाइट जल रही है, एंड योर हार्ट इज कंप्लीटली यकादु ज़ैतुहा युदी, इट इज यर्निंग टू बी लिट. एंड आपके अंदर एक बहुत, आपको समझ नहीं आ रहा, बट मेरे अंदर एक फीलिंग है कि यार अल्लाह ताला, बस मैं किसी ना किसी तरीके से आपसे करीब होना चाहता हूं. बस मैं, या तो मेरी आप सोबत बेहतर कर दें, या अल्लाह मैं कुरान समझना चाहता हूं, या अल्लाह मैं अपनी नमाज बेहतर करना चाहता हूं. देयर इज अ लाइट दैट इज ऑलरेडी इनसाइड यू दैट इज स्क्रीमिंग, दैट वांट्स टू एस्केप. एंड व्हाट हैपेंस? हाउ डू यू fulfill that thing? What happens is that light that Allah Ta'ala, that noor that Allah Ta'ala placed inside you, when it finally meets the noor of the Quran, the noor of Wahi, and when these two noors combine, you have what? Noorun ala noor. That's how the circle is completed. That is actually the fulfillment of insan and his purpose. कि अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं कि यार तुम जितने भी, तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारे अंदर गुनाह हैं, तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम्स हैं, तुमसे जो है ना दीन पर सही तरह अमल नहीं किया जा रहा, तुम्हें एक दूरी महसूस हो रही है,
What are you worried about? Allah Ta'ala is promising you and saying, I have already put my noor inside of you. That noor in itself is literally yearning for the noor from wahi. उसके अंदर एक मैंने, and by the way, like I'll be honest with you, the fact that you are here today or any other बयान, या कभी भी आप किसी भी दीन की मेहनत में जाके जुड़ते हैं या कोई ऐसे दीन के काम में लगते हैं, that is proof of the fact there is नूर inside of you. Because जिसकी नूर की लाइट खत्म हो गई है, ये भी होता है, नूर की लाइट खत्म भी हो जाती है, कांच बिल्कुल काला भी पड़ जाता है, दिल बिल्कुल मुर्दा हो जाता है, देन अल्लाह ताला फिर इस तरह के हिदायत के मौके भी रोक देते हैं. एंड देन फाइनली व्हेन यू पुट योरसेल्फ इन दिस सिचुएशन, आप कहते हो कि हाँ यार, ये यू नो दिस, आई वांट टू देन पुट माई सेल्फ इन अ सिचुएशन वेयर आई कैन बी एक्सपोज टू द नूर ऑफ वही और द नूर ऑफ द सुन्ना. एंड बाय द वे, नूर का जो लफ्ज है अल्लाह ताला ने उसको कुरान के लिए भी इस्तेमाल किया है, उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इस्तेमाल किया है, और उसको जनरल लाइट के लिए भी इस्तेमाल किया है. In fact, there is another interpretation of this ayah where Ibn Abbas फरमाते हैं कि यहाँ सिर्फ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की बात हो रही है. And by as a side effect, हर मोमिन और हर ईमान वाले की बात हो रही है कि यहाँ भी एक ही बात हो रही है कि एक बहुत प्योर दिल था जिसको इंसान ने प्योर रखने की कोशिश की थी. अगर वो प्योर होगा, जिस दिन वो वही का नूर उसको नजर आएगा तो उसका दिल उसकी तरफ माइल होगा. And that's what by the way happened to the Sahaba. And वहां भी आपको डिफरेंसेस नजर आएंगे कि द प्योरेस्ट ऑफ हार्ट्स वाज अबू बकर सिद्दीक. एंड हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने जिस किसी को भी इस्लाम की दावत दी, हर किसी में ना थोड़ी सी हेजिटेशन थी एक्सेप्ट फॉर हज़रत अबू बकर सिद्दीक. द मोमेंट आई सेड इट, ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम. लाइक ही इज द क्लासिक केस ऑफ द ज़ुजाजा, द ग्लास बीइंग कंप्लीटली प्योर. उनका हार्ट एक्चुअली उस वक्त रेडी था. एंड यू नो सेम विद द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वो क्यों गारे हिरा में जा रहे हैं 6 महीने तक? What is bothering him is the pureness of his heart. He could not understand कि मेरे अराउंड ये फितना क्यों है, ये फसाद क्यों है, ये झूठ क्यों है, ये धोखा क्यों है, ये सूद क्यों है, ये शराब क्यों है, ये कत्लो क़िताल क्यों है. His heart could not, like his heart was literally yearning for wahi. And then he gets it in, you know, jab the first surah is revealed. And same for Abu Bakr Siddiq. And you can see differentiation. Okay, it takes Hazrat Umar some time to get there. It takes Abu Sufyan almost 18 years to get there. It takes Khalid bin Walid almost 15 years to get there. हर सहाबा की अपनी एक जर्नी है, right? But it shows you that there was something inside. Because इस पूरे उसकी ना एक flip side है. And by the way, that's something that I want to discuss with you guys today as well. इस सब चीज की एक flip side है. And उसकी flip side ये है कि मैं और आप एक ऐसे हालत में हो, मैं और आप एक ऐसे सिचुएशन में हो कि हमें अल्लाह ताला की हिदायत बुला रही हो और हमारा दिल उसी तरफ माइल ना हो रहा हो. And you will see that in the seerah as well. And one of the prime examples of that, by the way, is, you know, people like Abu Jahl, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 लोग के लिए दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह गिव मी वन ऑफ द अमरैन, राइट? कि एक उमर की बात हो रही है और एक अमर बिन हिशाम, व्हिच इज अबू जहल. दो अमर की बात हो रही है. एंड जिसका शायद, एंड वन ऑफ, यू नो, हमारे स्कॉलर्स ये कहते हैं, ऑब्वियसली दिल की हालत तो कोई किसी की नहीं जान सकता, बट एक जैसे कहते हैं ना कि एक इबरत के लिए, समझने के लिए, कि जिसके दिल में एक प्योरिटी थी, जिसके दिल में अभी भी वो एक नूर का चिराग जल रहा था, अल्लाह ताला ग्रांटेड हिम हिदायत. बिकॉज़ अल्लाह ताला आगे व्हाट डज ही से इन दैट, ही सेज वलौ लम तमससु नार नूरुन अला नूर, दैट इज लाइट अपॉन लाइट, यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा. और ये अल्लाह ताला हिदायत देते हैं लिनूरिही, अपने नूर की, मन यशा, जिसको वो चाहे. अच्छा, एंड बाय द वे, दिस इज समटाइम्स अ लॉट ऑफ पीपल गेट कंफ्यूज. व्हाट डज दैट मीन? कि मतलब ऑब्वियसली देयर इज दिस अंडरस्टैंडिंग कि अल्लाह ताला का इज़्न होगा तो हिदायत आएगी, बट सम पीपल टेक इट इन अ वेरी नेगेटिव मैनर कि अगर मैं गुनाह कर रहा हूं, ये मैं मिसालन कह रहा हूं कि अगर मुझसे गुनाह हो रहे हैं, अगर मैं अल्लाह से दूर हूं, तो ये तो अल्लाह ताला ने चाहे, अल्लाह ताला मुझे हिदायत देना ही नहीं चाहते. एंड बाय द वे, ये जो पहली सूरत की जो तशरीह थी, मैं इसलिए आपके सामने मैंने रखी है, इसके पहले ही अल्लाह ताला आपको बता चुके हैं दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी पुट द नूर इनसाइड ऑफ यू. इफ अल्लाह ताला डिड नॉट वांट मी एंड यू टू गेट हिदायत, अल्लाह ताला वुड नेवर हैव पुट दैट नूर इनसाइड. अल्लाह ताला इज लिटरली सेइंग दैट नूर इज देयर, दैट फर्स्ट स्टेप इज देयर. अब तुमने अपना दिल खोलना है, तुमने अपने दिल को साफ करना है, तुमने एक्सेप्टिंग होना है, and then, you know, the two noors will combine.
वयदरिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। और इस तरह अल्लाह ताला बयान करते हैं मिसालें लोगों के लिए, वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज जानने वाले हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो मिसालें हैं ये मैं तुम्हारे लिए रखता हूं, ये मैं दिस इज फॉर ह्यूमन बीइंग्स। लाइक जिस तरह होता है ना कि किसी बच्चे को आपने कोई बात समझानी होती है तो बहुत सारी मिसालें देनी पड़ती हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो मिसालें हैं ये तो तुम्हारे लिए हैं, वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, मैं तो हर चीज जानने वाला हूं। एंड देन ही गोज ऑन टू से दिस रियली इट्स अबाउट हाउ यू सस्टेन इट। अल्लाह ताला कहते हैं फी बुयूतिन अदिनल्लाहु अन तुरफअ व युज़करा फीहा इसमुहु युस्बहु लहू फीहा बिलगुदुवी वल आसाल। और ये जो मेरा नूर है, ये जो मेरी लाइट है, ये घरों के जरिए से जो है अल्लाह ताला ने ऑर्डर किया है कि वो फैलें। अब ये घर कौन से हैं? ये हमारी मसाजिद हैं। ये वो मसाजिद भी हो सकती, ये मसाजिद भी हो सकती हैं, या ये वो महफिलें भी हो सकती हैं, ये वो घर भी हो सकते हैं जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है। ये कि वफ़ीहा व युज़करु फ़ीहा इस्मुहु, कि जिसमें अल्लाह ताला का नाम लिया जाता है, युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलगुदुवी वल आसाल, और वहाँ अल्लाह ताला का सुबह और शाम जिक्र किया जाता है। एंड आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू टुडे। हमने अपनी बहुत ज्यादा जिंदगी इस फिक्र में लगा दी है, नॉट जस्ट फिक्र बट आई वुड से हमारे कुछ लोगों का तो मकसद ही ये है कि हमने अपनी दुनिया सेट करनी है, व्हिच इज फाइन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इनफैक्ट आगे एक आयत आएगी व्हिच विल क्लैरिफाई दैट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट डोंट यू थिंक कि कितना एक रिग्रेट फील होगा ऑन द डे ऑफ जजमेंट, वेयर मी एंड यू विल बी स्टैंडिंग एंड वील बी थिंकिंग कि आई स्पेंड सो मच टाइम, मैं अपने इस दुनिया को इन लाइट से मुज़य्यन कर रहा था। मैं अपने घर की जो मेरे फिजिकल हाउसेज हैं जिनमें मैं लाइट्स लगा रहा हूँ, हम रोडें बना रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। इनफैक्ट बाय द वे, लाइक इवन टुडे अ साइन ऑफ प्रोग्रेस, जितनी भी सिटीज को साइन ऑफ प्रोग्रेस कहा जाता है, दीज आर सिटीज आर आल्सो रिफर्ड टू एज सिटी ऑफ लाइट्स, चाहे वो पेरिस हो, न्यूयॉर्क हो। तो दीज आर एंड व्हाई व्हाट इनफैक्ट आप यूं समझें कि जब आप उनकी कोई बर्ड्स आई व्यू लेते हैं तो यू कैन सी द एंटायर सिटी लिट अप, एंड दैट इज इनफैक्ट अ साइन ऑफ प्रोग्रेस। कितना मुझे और आपको अफसोस होगा कि वी स्पेंड आवर लाइव्स इन सर्च ऑफ लाइटिंग अप आवर दुनिया, लाइटिंग अप आवर होम्स, बट वी डिड नॉट स्पेंड इनफ टाइम ट्राइंग टू लाइट अप आवर हार्ट्स। कि जिस लाइट का वाकई मुझे फायदा होना था। एंड बाय द वे, क़यामत के दिन अल्लाह ताला डिस्क्राइब करते हैं कि लोग अंधेरे में उठाए जाएंगे, एंड कुछ लोग होंगे जिनको हमने नूर दिया होगा। एक है कि जिसमें उनके दिल से आ रहा होगा, एक है उनके सीधे हाथ से आ रहा होगा। तो would it not be like, just imagine being in that situation where I know कि हाँ यार, मैंने इतना वक्त जो है बस मेरी कोशिश थी कि मैं किसी तरीके से अपनी दुनिया को रोशन कर लूं, कि मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, बट आई कुड नॉट स्पेंड इनफ टाइम बीइंग अ मिस्ताक ऑफ दिस आयत, कि मेरा घर शायद इन बत्तियों से तो रोशन था, बट जो असल नूर था, फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़करा फ़ी इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलगुदुवी वल आसाल, वो इसका मिस्ताक नहीं था। दैट व्हेन जब इंसान देख रहे थे तो उनको लग रहा था यार वाह क्या घर है, इतनी लाइटें इसके अंदर, क्या रोशनी है इसकी। बट जब आसमान में फरिश्ते देख रहे थे तो उनको कुछ नजर नहीं आ रहा था, बिकॉज फॉर देम लाइट इज व्हाट, द ज़िक्र ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दैट इज द ट्रू नूर। एंड सो दैट इज अ सिचुएशन दैट वी कैन बी इन। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतु वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात। अल्लाह ताला बाय द वे क्लैरिफाई करते हैं, वो कहते हैं कि ये किसके लिए है, ये जो तशबीह है, ये खुशखबरी है, वो किसके लिए है, ये उन मर्दों के लिए है, ला तुल्हीहिम तिजारतु वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, कि उनका खरीदना और बेचना उनको इस चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। किस से? व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात, उनकी नमाज कायम करने से और ज़कात अदा करने से। इससे एक चीज और भी साबित होती है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तिजारत करनी है, बाइंग सेलिंग करनी है, उससे बस डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। एंड अल्लाह ताला व्हेन ही प्लेसेस अस इन दिस दुनिया, उन्होंने हमें इस सबब की जगह में डाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि वी गिव अप एवरीथिंग। हम हर, इनफैक्ट बाय द वे, लाइक इवन टुडे हमने जो अपनी मसाजिद के साथ किया है कि वेयर वी हैव सिंपली रिस्ट्रिक्टेड आवर मसाजिद फॉर 5 वक्त की नमाज, इवन दैट इज नॉनसेंसिकल। कि लाइक द मोमेंट यू प्रे, आपको पता होता है 15 मिनट बाद तो मस्जिद ही बंद हो जाएगी, और अगर आप 20 मिनट पहले पहुंच गए, जिसको अल्लाह ताला तौफीक दे,
तो मस्जिद ही खुली नहीं होती। एंड हमने लिटरली, एंड हालांकि द मसाजिद एट द टाइम ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर ओपन डे एंड नाइट, दे वर रोशन डे एंड नाइट, एंड उन मसाजिद में बहुत कुछ और हो रहा होता था। वो कम्युनिटी सेंटर्स भी थे, वहाँ लोग जो है मुलाकात भी करते थे, वहाँ लोग जो है मतलब बहुत सारे शहर के अफेयर्स भी डिस्कस करते थे, उम्मत के अफेयर्स डिस्कस करते थे। एंड टुडे इट्स बिकम रिस्ट्रिक्टेड टू अ वेरी वेरी माइनर थिंग। may अल्लाह ताला गिव अस द तौफीक। तो खैर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, मजीद आगे कहते हैं, यखौफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार, एंड ये वो लोग हैं जो डरते हैं उस दिन से जिस दिन आंखें और दिल वो क्या होंगे, वो ट्रेम्बल करेंगे, they will literally वो शेक करेंगे, right? And then, and this is something that I want to share with you, आगे जाके अल्लाह ताला फरमाते हैं, because ये इस फ्लिप साइड, एक तरफ अल्लाह ताला नूर की बात कर रहे हैं ना, लाइट की बात कर रहे हैं, उसकी फ्लिप क्या है, अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना कफ़रू अअमालुहुम कसराबिम बिक़ीअतिन यहसबुहु ज़मआनु माआ, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कुफ़ार हैं क़यामत के दिन उनके जो आमाल होंगे कसराब, दे विल बी लाइक अ मिराज। अच्छा, ये मिराज वो होता है, कभी कभार आप हाईवे पे जा रहे हो, मोटरवे पे जा रहे हो, तो आपको दूर से लगता है गर्मी के अगर दिन हो तो आगे क्या आ गया है, पानी है, राइट? एंड फॉर द अरब्स द डेजर्ट, आपको हर जगह ही वो नजर आ रहा होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये कुफार जो हैं उनके लिए उनके जो आमाल क़यामत के दिन के उनके आमाल कैसे होंगे कि इट विल बी लाइक अ मिराज बिक़ीअतिन यहसबु ज़मआनु माआ, और उनका बहुत दिल कर रहा होगा कि मैं उस पानी, ये जो पानी नजर आ रहा है मैं उससे जाके पी लूं। हत्ता इज़ा जाआ, मगर जब वो उसके पास पहुंचेंगे, सच अ लाइक एन अमेजिंग येट स्केरी आयत। अल्लाह ताला कहते हैं कि क़यामत के दिन उनको लग रहा है, एंड दिस कुड बी अ तशबीह टू लाइट एज वेल, कि उनको लग रहा है यार मेरे अमाल हैं आगे, उनको लग रहा है बिकॉज क़यामत के दिन में प्यास होगी, एक जिसे कहते हैं ना कि बहुत गर्मी होगी, तो वो उसके करीब जाएंगे। हत्ता इज़ा जाऊ, और जब वो पहुंचेंगे लम यजिदहु शैअ, तो वहां कुछ भी नहीं होगा, देयर विल बी नथिंग। इनफैक्ट वो क्या पाएंगे, ववजदल्लाह इंदा, वो उसके करीब बताऊं क्या पाएंगे, अल्लाह ताला को पाएंगे। द गॉड दैट दे हैड बीन रिजेक्टिंग ऑल देयर लाइव्स, द गॉड they thought they could get their way around, the God that they felt was not important, the amal that they felt were not important, the deeds that they felt were worthless या waste of time या extremism या intolerance, या इतना थोड़ी होता है इस्लाम में, इतना दीन थोड़ी है। उस दिन क्या होगा, it will be a mirage, and when they get there what will they actually find? Allah, and they will be then held accountable. فَوَفَّاهُ حِسَابًا, who will be ready to settle their account. وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ, and Allah ताला बहुत तेज हिसाब लेने वाले हैं। और एक और मिसाल, أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ, या उनकी आमाल बताऊं कैसे होंगे। एंड दिस इज नाउ द फ्लिप ऑफ नूरुन अला नूर। अल्लाह ताला कहते हैं कि उनके आमाल कैसे होंगे, दे विल बी लाइक जुलूमात, डार्कनेस, फी बहरी लुज्जी, इन द सी, राइट? लुज्जी यख्शाहु मौज मिन फौक़िही मौज, और ये जो समंदर है उसके जो अंधेरे हैं, इट इज एक्चुअली कवर्ड बाय द वेव्स ऑफ दैट ओशन। एंड व्हाट इज दैट? जुलूमातुम बादुहा फौक़ बाद, that is darkness upon darkness. कि today, and think about it, अल्लाह ताला क्या कहना चाह रहे हैं, आज जो तुम्हें रोशनी लग रही है ना, this रोशनी, this fake रोशनी that we have created, अल्लाह ताला is saying कि on the day of judgment the entire मामला is flipped. The रोशनी that you cannot see, and that रोशनी is in your heart, and वो किससे बढ़ती है? वो कुरान से बढ़ती है, वो हदीस से बढ़ती है, वो अच्छे अमाल से बढ़ती है, वो सदक़े से बढ़ती है, वो जो है ना अच्छे अखलाक से बढ़ती है। The one that nobody can see, और किसी को भी आज मैं किसी के दिल में झांक के नहीं बता सकता कि यार ये इसका क्या मामला है अपने रब के साथ। हाँ, I can look at his clothes, I can look at his car, I can look at his house, I can look at his degrees, I can give him a worth. And हम आज क्या कर रहे हैं कि दुनिया में हम उस बंदे को वर्थ दे रहे हैं। The way I dress, the way I look, that is my worth. But the one thing that will be most worthy on that day is something that nobody can see except Allah subhanahu wa ta'ala. And that is the light that we have inside. And in fact, हो सकता है इस दुनिया के पीछे, I'm not saying कि ऐसा होगा या ऐसा हमेशा ही होता है, but अक्सर औकात, and that's why अल्लाह ताला बार बार ये कहते हैं कि दुनिया धोखा है, कि when I start running after that दुनिया in a manner that I become what? That मैं अपनी सिर्फ
मैं अल्लाह ताला ने 2 मिसालें दी ना कि अपनी नमाज और ज़कात भूल जाते हैं, विच इज़ बाय द वे अ कंप्लीट समेशन ऑफ दीन, कि एक प्राइवेट इबादत और एक पब्लिक इबादत, अल्लाह वो दोनों से गाफिल हो जाते हैं कि हुकूक अल्लाह से भी गाफिल हो गए, हुकूक इबाद से भी गाफिल हो गए। तो उनके लिए क्या है, ज़ुलुमातुन बअदुहा फौका बअद, इट्स लाइक अ डार्कनेस, लेयर ऑफ डार्कनेस अपॉन अ लेयर ऑफ डार्कनेस, राइट? सो टुडे, just to sort of end inshallah on a much more practical note, कि हम आज अपने आप को इस चीज से, इन जुलुमात से कैसे, किस तरह प्रोटेक्ट करें, या किस तरह अगर अल्लाह ताला ने हमें इस नूर के अंदर आने का, दाखिल होने का मौका दे दिया। एंड बाय द वे, एवरी टाइम यू कम टू अ गैदरिंग जहां अल्लाह और रसूल की बात हो रही है, या आप किसी भी तरह के ऐसे अमल में इंगेज होते हैं जो अल्लाह ताला के लिए, आप उस वक्त नूर के अंदर है, उस वक्त अल्लाह ताला की नूर हिदायत आपकी तरफ मुतवज्जे है। तो अब मेरा काम है मैं उसी पे कायम रहूं। तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स है दैट आई वांट टू शेयर। एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज, वंस उम्मे सलमा, a sahabi came to Umm Salama radiyallahu anha. Umm Salama is the wife of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and this is after हमारे नबी के विसाल के बाद, उनके इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद, he came to Umm Salama and asked her कि can you tell me the dua that the Prophet sallam made सबसे ज्यादा कसरत से, कि कोई एक ऐसी दुआ बता दे जो मेरे नबी सबसे ज्यादा करते थे, कसरत से करते थे। उम्मे सलमा ने हमें वो दुआ सिखाई। शी सेड कि हमारे नबी वसल्लम दुआ करते थे, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। व्हाट डज इट मीन? या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब, ओ टर्नर ऑफ हार्ट्स, ए दिलों को फेरने वाले, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, मेरे दिल को अपने दीन पे कायम कर दे, साबित रख। ये दुआ कौन कर रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द मोस्ट। So the first and foremost step is dua. That wallahi Allah Ta'ala has guided us. Allah Ta'ala ने हमें, just the fact that we are cognizant of the fact that we are Muslim, because there are so many Muslims today who have forgotten that. The fact that मैं और आप आज ये इसकी तस्लीम कर रहे हैं कि मैं और आप मुसलमान हैं, ये हिदायत है। Another dua, once again very powerful dua in the Quran, Rabbana ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, के या अल्लाह हमारे दिलों को ना फेरना, उसके बाद जो आपने हमें हिदायत दी है उसके बाद हमारे दिलों को ना फेरना। एंड दिस शोज अस वंस अगेन, बाय द वे, वन मोर प्रूफ ऑफ द फैक्ट कि हमें हिदायत मांगनी है अल्लाह ताला से, इज द फैक्ट दैट मैं और आप रोज हिदायत की दुआ करते हैं। करते हैं? कौन करता है? कौन रोज हिदायत की दुआ करता है? बाय द वे, बाकी इसका मतलब है आप लोग नमाज भी नहीं पढ़ते। हम रोज नमाज में क्या कहते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि या अल्लाह क्या करें आप मुझे, गाइड मी टू द स्ट्रेट पाथ। अल्लाह ताला ने, बिकॉज अल्लाह ताला को पता था कि हमें ये भी नहीं पता होगा हम हिदायत मांग रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने हमारी नमाज में हम पे फर्ज कर दिया 17 टाइम्स इट्स फर्ज ऑन अस टू आस्क फॉर हिदायत। एंड दैट प्रूव्स दैट द फर्स्ट स्टेप टू स्टेइंग इन दिस लाइट एंड अवे फ्रॉम द ज़ुलुमात is light, is dua. So we, inshallah, that. The second, once again, very basic things, but believe me, this is what we need today, is ilm, तालीम। अल्लाह ताला is describing कि एक नूर मेरे अंदर है, दूसरा नूर क्या है? वो वही है। अच्छा, अब जो कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, वो भी एक नूर थे कि सहाबा कराम उनको भी जब देखते थे तो उनको जैसे नहीं, they could feel that नूर would transcend to their hearts, right? But now Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is not there. What is still there? It's the Quran. And it's the Sunnah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. By the way, एक चीज, like, sometimes we discount the noor of the Sunnah. मैं बहुत specifically इस बात, हम सारे फराइज पे मिलके खड़े हो जाते हैं, हम कुरान पे भी मिलके खड़े हो जाते हैं, कोई डिनाई नहीं कर सकता, हर फिरका खड़ा हो जाता है। Sunnah, we discount the Sunnah. And I would say over time, and ये एक by the way बहुत simple trajectory है, अल्लाह ताला भी मिसालें देते हैं, क्योंकि ना एक बात समझानी होती है, तो मैं एक बहुत बेसिक मिसाल से आपको बात समझाता हूँ, और ये किसी भी स्टूडेंट को बात समझ आ सकती है कि इफ आई वांट एन ए ग्रेड, आई हैव टू एम फॉर व्हाट? A+। सिंपल सी बात है, कायदा उसूल। और वो बच्चा जो कहता है हाँ यार मुझे चाहिए B है, he ends up with a D, I want a C, I'll end up with an E। ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है। ये मैं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, आप कारोबार ले लें, आप कुछ भी ले लें, दुनिया में यू एम हाई, यू एंड अप समवेयर। द सुन्ना इज दैट। मैं और आप आज कह रहे हैं आज लोग खड़े फर्ज पूरे करने हैं, तो सुन्नत है ना,
बिलीव मी द बरकत ऑफ सुन्ना इज कि यू विल गेट तौफीक फॉर फर्ज। और ये आप, मैं खैर अपने पर्सनल एग्जांपल से बात कर सकता हूँ। वंस अगेन ये अमाल फ्लक्चुएट करते हैं। जब बंदा सुन्नत पढ़ रहा होता है ना तो फर्ज भी पूरे हो रहे होते हैं, जब सुन्नत छूटती है फर्ज भी छूटना शुरू हो जाते हैं। एंड बाय द वे इसका मतलब क्या है, सुन्नत को बरकरार रखने के लिए क्या है, नफल। इट्स अ सिंपल ट्रैजेक्टरी। तो बिलीव मी, डोंट डिस्काउंट द नूर ऑफ दिस सुन्ना, राइट? यू नो it's difficult, but the easiest sunnahs, by the way, easiest sunnahs are the physical ones. Like it's very easy to say कि हाँ यार मतलब, but just for the men, by the way, the sunnah of the beard, like I cannot explain to you, but ये एक experiential चीज है, उसकी अपनी एक बरकत और नूर है. For the women, just covering your head, उस सुन्नत की और बरकत एक नूर है। हमारे नबी पास ने फरमाया था, कुरान मजीद में लिखा हुआ है, right? All of that is there. That in itself is barakat in your life. What you wear, if it's close to the sunnah, उसकी बरकत है. What you eat, if it's close to sunnah, उसकी बरकत है. How you speak, if it's close to the sunnah, उसकी बरकत है. How you pray, if it's close to the sunnah, उसकी बरकत है. किसी भी चीज से आप सुन्नत को निकाल देंगे ना, believe me, the khair goes away. There is a reason Allah Ta'ala sent the Prophet sallallahu alaihi wasallam. By the way, Allah Ta'ala सिर्फ एक किताब भी भेज सकते थे. Allah Ta'ala एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री भेज सकते थे, by the way. कुछ भी हो सकता था, मतलब just we can't limit, but Allah Ta'ala chose a really specific model, and He chose to send whom the Quran calls Noor, and that was the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So how is it that मैं उनकी लाइफ की कोई चीज अडॉप्ट करूंगा, चाहे वो बातिन की हो या वो जाहिर हो, बातिन हो, जो भी हो, और मुझे उसमें फायदा महसूस ना हो? So don't discount that. So and बात इल्म से शुरू हुई थी, so I'll get back to that. एक नूर is the sunnah of the Prophet, and then एक नूर is actually वही, and उस वही का इल्म पढ़ना, उस वही को इंटरनलाइज करना, उस तरह की मजालिस में बैठना, उलमा और स्कॉलर्स जिनने अपनी पूरी जिंदगी उस इल्म के पीछे लगा दी है, उनसे वो बात सुनना, उसका एक असर है. And that is how one way you can maintain. And believe me, like today, it is जिस तरह दुनिया जिस स्पेस पे जा रही है, और जिस तरह आपके पास बातिल आइडियोलॉजीज एंड कुफरी आइडियोलॉजीज का एक बम्बार्डमेंट हो रहा है ऑन अस एंड आवर चिल्ड्रन, every parent today, or every, I would say, any baligh mard or औरत today should have this ilm. They should know what the Quranic perspective is. They should know what the Quranic worldview is. They should know what hadith में क्या बात हो रही है. They should know हमारी fiqh क्या है. They should know सीरत क्या है. They should know, you know, we will leave, so many people on a daily basis, are Muslims are leaving this dunya knowing so much about people they have never met, right? चाहे वो कोई celebrity हो, चाहे वो कोई sports person, and they would have never even read the life of our prophet once. हमें आजकल लग रहा है कि बस मैं इस्लामियत में, हाँ जी कहीं गुजारी थी मैंने सीरत, but genuinely सीरत को पढ़ना और internalize करना is one more way of staying in the light. So dua, ilm, the third, which is arguably the most difficult, because उसके लिए मजीद मेहनत की ज़रूरत है, and that is finding good sohbat, finding good companionship. And वो मसला ये है कि वो companionship खरीद नहीं सकते, ना ही वो इंटरनेट पे तो कम ही मिल रही है वो, उसके लिए आपको फिजिकली उठ के जाना पड़ेगा. कहाँ जाना पड़ेगा? तो किसी भी, चाहे वो आप मस्जिद जाएं, चाहे आप वहीं जा सकते हैं ना जहाँ अल्लाह वाले होंगे, जहाँ अच्छी सोहबत मिलेगी. तो either it is madaris, it is masajid, it is institute, whatever it is, you have to physically put yourself, because so many times a lot of, you know, नौजवान आते हैं, वो कहते हैं यार अब यूनिवर्सिटी भी गुजर गई, जॉब पे भी और बिजनेस में भी अच्छी सोहबत नहीं है, कहाँ से मिलेगी? तो एक ऑल्टरनेट है, चाहे आप, एंड ये सिंपल ऑल्टरनेट है, या आप मस्जिद में जा रहे हैं, तो मस्जिद में जब दीन की बात हो रही है आप बैठ रहे हैं, चाहे वो तबलीग है या कोई और दर्स हो रहा है, या आप ऐसे इदारों में जा रहे हैं जहाँ इल्म ऑफर हो रहा है या कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं. एंड बाय द वे, लाइक आई एम नॉट सेइंग इट क्योंकि नसीहा ये काम कर रहा है और बहुत इदारे ये कर रहे हैं, बट बिलीव मी देयर इज नो अदर ऑल्टरनेट राइट नाउ. आप दीन की, अच्छा बाय द वे इट डजंट हैव टू बी जस्ट दिस, बहुत सारी फलाही काम हो रहे हैं, बट अपने आप को अच्छी मजालिस में, अच्छी मेहनतों में जोड़ें, एंड hope for the fact that those people can then become your circle. And let's say even if that is not the case, at least आपको वो dose मिलता रहेगा on a weekly basis. And that is the third way. The fourth and final way, I will link that to the first one. मैं उसको थोड़ा सा दुआ से भी लिंक करूंगा, but and this is the last advice that I have. किसी भी चीज में दुनिया में प्रोग्रेस करने के लिए, and this is from a दुनियावी point of view, you could take it as well, you have to put yourself in a situation where you are not comfortable. ये एक फैक्ट है. ग्रोथ के लिए
आपको अपने आप को इनकम्फर्टेबल करना पड़ता है। तो जिस तरह मतलब मुझे और आपको तालीम हासिल करनी है तो घर बैठे नहीं मिल सकती। आई हैव टू गो समवेयर, मुझे चाहे वो स्कूल जाना है, मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, मैंने पैसे कमाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं यार, बहुत कुछ करना पड़ता है, बट उसके पीछे एक एंड रिवॉर्ड है, एक ग्रोथ है। इसी तरह दीन में भी ग्रो करने के लिए यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन सिचुएशंस। ये इसकी एक और मिसाल मैं दे सकता हूँ। जो अगर कोई जिंदगी में जिम गया है यहाँ, तो कोई जिम गया है, जिम स्पोर्ट्स या जिम, राइट? आप नोटिस करेंगे कि अगर आप एक ही रूटीन बहुत कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहे, स्लोली आपके गेन्स खत्म हो जाते हैं। सो लेट्स से अगर आप फुटबॉल प्लेयर हैं, आप एक ही दिन जाके एक ही चीज प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, ओवर टाइम यू हैव टू चेंज योर रूटीन टू ग्रो। इसी तरह आप अगर अपनी फिजिकली आप चाहे वेट लूज करना चाह रहे हैं या आप मसल गेन करना चाह रहे हैं, यू हैव टू कीप चेंजिंग योर रूटीन, बिकॉज बॉडी यूज्ड टू जाती है और फिर वो इनफैक्ट स्टैग्नेट करती है, स्टैग्नेट के बजाय फिर डिक्लाइन करती है। तो दीन में भी मेरा और आपका यही मामला है। बहुत सारे मेरे सामने लोग बैठे हुए हैं जो कहेंगे बस यार 1 से वीक बयान काफी है। जो 1 से वीक बयान पे आ रहे हैं वो कह रहे हैं यही काफी है। जो 5 वक्त का नमाजी है वो कह रहे हैं यही काफी है। द प्रॉब्लम इज, अगर आप वहां प्रोग्रेस नहीं लाओगे ना, सून यू विल स्टैग्नेट एंड यू विल एंटर दैट सेम साइकिल वेयर फिर नमाज भी अच्छी नहीं लगेगी, फिर कुरान भी नहीं पढ़ा जा रहा होगा, जिक्र भी नहीं हो रहा होगा, दुआ के लिए हाथ भी नहीं उठाए जा रहे होंगे। यू हैव टू कीप पुशिंग योरसेल्फ, और ये हर बंदे के लिए डिफरेंट है, हर बंदे के लिए डिफरेंट है। तो अगर आप एक बयान पे आ रहे हैं, कंसिडर इंक्रीजिंग द डोज। अगर आप ऑलरेडी किसी कोर्स में हैं, इंक्रीज द डोज ऑफ दैट कोर्स। अगर आप ऑलरेडी 5 वक्त के पक्के नमाजी हैं, मस्जिद के नमाजी बने। मस्जिद के पक्के नमाजी हैं, अपनी सुन्नतें पक्का करें। सुन्नतें पक्की हैं, तहज्जुद पक्की करें। आप हफ्ते में एक दिन कुरान खोल लेते हैं, 2 बार खोलें, रोज खोलें। कीप इंक्रीजिंग द डोज। शुरू में इट विल फील एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल, जिस तरह होता है व्हेन यू फर्स्ट गो टू द जिम और स्टार्ट प्लेइंग अ स्पोर्ट, तो पूरा जिस्म जो है ना अकड़ जाता है। बट स्लोली एंड श्योरली यू वेक अप वांटिंग टू गो, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस इन दीन एज वेल। इफ एंड बाय द वे, बहुत सारे मेरे सामने मेरे बहुत सारे आई नो पीपल हियर, आई नो स्टूडेंट्स एज वेल, बहुत टाइम ऐसा होता है कि यू फील कि यार मैं इतना कुछ तो कर रहा हूं, मैं क्यों स्टैग्नेट कर रहा हूं? It's Allah Ta'ala telling you can do more. It's simply Allah Ta'ala telling you can do more. And there is no one better who knows that. And believe me, that in itself, that feeling in itself, that is what we call hidayat. And so, may Allah Subhanahu Wa Ta'ala make us all mistaq of these ayat. कि Allah Ta'ala जो है, Allah Ta'ala ने जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर एक नूर डाला है, Allah Ta'ala हमें उसकी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह ताला अपने नूर से उस नूर को जमा होने की तौफीक अता फरमाएं। एंड अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें हर अच्छे काम में लगाएं, हर बुरे काम से बचाएं। जस्ट बिफोर वी मेक दुआ, आई जस्ट हैव अ सिंपल रिक्वेस्ट, बिकॉज आई थिंक दैट बहुत सारे ऐसे बयान हो जाते हैं एंड आई थिंक के इट्स फील गुड, कुछ आएंगे सुनेंगे, अच्छा हमने बयान सुना, हम चले गए। जस्ट बिफोर वी मेक दुआ, इन द नेक्स्ट 30 to 40 seconds, I want everyone to just close their eyes and make some intentions. कुछ intentions करें 30-40 सेकेंड तक, जब बस अपने सारे thoughts को remove them from your mind and just think about how you want to get better in deen. चाहे आप आज बैठे बैठे कोई नियत करें कि अल्लाह ताला मेरे ये गुनाह है मेरी ज़िंदगी में, अल्लाह ताला just take it away from me, या अगर आपने कोई अच्छे काम की नियत की हुई है तो अल्लाह ताला मुझे आप उसकी तौफीक दे दें। दुआ फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। या रहमान या रहीम या करीम या जुल जलाली वल इकराम या समद या बारी या हय्य या क़य्यूम या रहमान या खालिक या मालिक या रहमान या रहीम या करीम या जुल जलाली वल इकराम। ए हमारे रब, या अल्लाह, आपने इस पूरी दुनिया को बनाया है, इस पूरी कायनात को बनाया है। आप तो इस पूरी कायनात के आसमान और ज़मीन का नूर हैं। या अल्लाह, आप रहमान हैं, आप रहीम हैं। आपने इतनी बड़ी कायनात बनाई है। या अल्लाह, तेरी इस इतनी बड़ी कायनात में या अल्लाह हम आपके बहुत छोटे बंदे हैं। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह, हम आपके इस नूर के तलबगार हैं, आपकी तवज्जो के तलबगार हैं, आपकी रहमत के तलबगार हैं।
आपके इज़्न के तलबगार हैं। हम बहुत सारी नियतें करके आए हैं, अभी भी हमने बहुत सारी नियतें की हैं या अल्लाह, सिर्फ़ आपके कुन की कमी है, आपके इन इज़्न की कमी है, आपके चाहने की कमी है। आपके लिए सिर्फ़ एक कुन है या अल्लाह, हमारे लिए पूरी ज़िंदगी की एक मेहनत है या अल्लाह। या अल्लाह हमारे दिलों को बदल दीजिए, या अल्लाह हमारी ज़िंदगी को बदल दीजिए। या अल्लाह हम रोज़ नियत करते हैं कि आपके करीब होंगे, आपके दीन को समझेंगे, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझेंगे, उनकी सुन्नतों को अपनाएंगे, अपने अमाल ठीक करेंगे, अपने गुनाहों को छोड़ेंगे या अल्लाह। मगर हम इंसान हैं, आपने तो खुद फरमाया है कि हम तो ख़ताकार हैं या अल्लाह। या अल्लाह मगर इन ख़ताओं की वजह से या अल्लाह हमसे कभी हिदायत वापस ना लेना या अल्लाह, हमें कभी कभी यतीम ना करना या अल्लाह, हमें इस हमारे अंदर जो आपने नूर डाला था या अल्लाह उसको कभी वापस ना लेना या अल्लाह। बल्कि हम तो चाहते हैं कि आप इस नूर से हमारे गुनाहों के, हमारी आँखों के गुनाह भी माफ़ करें, हमारे दिमागों के गुनाह भी माफ़ करें, हमारे ज़बानों के गुनाह भी माफ़ करें, हमारे दिलों के गुनाह भी माफ़ करें या अल्लाह। हमें अपने इस नूर से भर दीजिए या अल्लाह, हमारे अपने इस नूर से हमारे दिलों को भर दीजिए या अल्लाह। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बिला। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिब्नि ली इंदका बैतन फ़िल जन्नह, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला खैरि ख़ल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।